Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Next is LHLD, load HL register pair directly. L stands for load HL register pair, D stands for directly. This instruction also receives 16-bit address. This 16-bit address is what? It's a location, memory location, and this memory location specifies the content or the operand. For example, as written over here, LHLD 2040H. Now, this 2040 is somewhere in the memory like this, 2040, and this is a location, and this location has some data T. Okay. Now, what will happen? This instruction copies the contents of memory location pointed out by 16-bit address into register L and next location into H. Now what will happen? You are just mentioning LHLD 2040. It is doing this T will be loaded into register L. This is your register L. This is your register H. So this T will be loaded into this, and the next memory location, that is 2041. Here let S. This S will be loaded into register H. In earlier case, that is LXI, what we are discussing, that in case of LXI, HL register pair will contain 2034. Means the address only, and in LHLD the register pair contains the content. Means the difference between LXI and LHLD is like, if you want to copy or you want to take directly data, means अगर आपको directly HL में data डालना है तो आप LXI use नहीं करेंगे, then you have to use LHLD instruction. And if you want to mention the address into the HL, मीन्स अगर आपको HL रजिस्टर पेयर में ये एड्रेस डालना है, इन दैट केस आप कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? LXI. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LXI और LHLD. ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द कंडीशन you will use the instruction either LXI, LDA, LDX or LHLD. Next is, this was all about load instructions. Now we'll start with the store instructions. जैसे आपने लोड इंस्ट्रक्शंस करी हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टोर इंस्ट्रक्शंस भी हैं. STA स्टैंड फॉर स्टोर डायरेक्टली फ्रॉम एक्यूमुलेटर. मींस जो भी कंटेंट एक्यूमुलेटर में है उसको हम स्टोर कराएंगे. कहां स्टोर कराएंगे? जिस लोकेशन पे स्टोर कराना है उस लोकेशन का एक एड्रेस होगा, एंड दिस इज दैट एड्रेस ऑफ 16-bit. हियर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन. मींस जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है वो कहां चले जाएंगे? मेमोरी लोकेशन में चले जाएंगे. कैसे? बाय द स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड. मींस STA, like A is an accumulator and it is containing 30. Okay, if you are mentioning this instruction, that is STA 2500, it means there is a memory location which address is 2500. So after executing this instruction, what will happen? The content of A, that is 3030, will be copied into this location. After executing this instruction, the content of accumulator will be copied into the mentioned location. अगर यहाँ पर 2500 की जगह 3200 लिखा होता, then a location which is address is 3200
तो ये कहां चले जाएंगे 3200 में। ओके, मींस जो भी एड्रेस आप यहां मेंशन करेंगे, व्हाटसोएवर द एड्रेस इज मेंशन्ड ओवर हियर, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, नाउ व्हाई वी नीड दिस इंस्ट्रक्शन? लेट आपने कोई भी एडिशन किया, आपने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, एड बी। दिस इंस्ट्रक्शन विल डू व्हाट? a is equals to a plus b. a is accumulator. बाय डिफॉल्ट रिजल्ट कहां रह गया? एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है वो अब एक्यूमुलेटर में है। अगर आपने इसके बाद कोई और इंस्ट्रक्शन लगाई प्रोग्राम में तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट मॉडिफाई हो जाएंगे। ओके, टू स्टोर योर इंटरमीडिएट रिजल्ट, ओके, लाइक आप चाहते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड c प्लस डी, आप ये कराना चाहते हैं। आपने एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दूसरी बार ये करना होगा, और तीसरी बार आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इस केस में क्या होगा? लाइक दिस इज अ टेम्परेरी वैल्यू t1, दिस इज अ टेम्परेरी वैल्यू t2, देन t1 और t2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो यू हैव टू स्टोर दिस टेम्परेरी वैल्यूज, इन टेम्परेरी वैल्यूज को स्टोर कराना पड़ेगा आपको, अदरवाइज एक्यूमुलेटर के कंटेंट मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होते ही आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। सो टू स्टोर दिस टेम्परेरी वैल्यूज you have to use this instruction, that is STA. Next is STAX, tax. Again, X stands for register pair, STA means store from accumulator. But अब यहाँ एक register pair है, it means it is an indirect addressing mode. And what is this register pair is doing? The content of accumulator, content means data, data जो accumulator में है वो कहां कॉपी होगा? कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर। इन दिस केस इंस्ट्रक्शन विल बी stacks d, instruction will be stacks h. Now b bc register pair, d de register pair, h means hl register pair. So in this case जो भी रजिस्टर पेयर आप यूज करेंगे उस रजिस्टर पेयर के अंदर एक वैल्यू पहले से पड़ी होगी, like here register B and register C, like 3003. This value is already mentioned in the register pair. After executing this instruction stacks B, what is happening? The content of accumulator will be saved onto the location. Which location? Which is mentioned over here, which is mentioned by this register pair B. BC is mentioning 3003. So the location 3003 in the memory will have the value of accumulator. Accumulator की वैल्यू कहां चली जाएगी? 3003 लोकेशन पर। Why? Because 3003 is mentioned by BC register pair. अगर यहां पर आपके पास ये वाला डेटा ना होकर 022 ये होता तो आपके पास इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाता। ओके, whatsoever be the content of register pair will be the memory location. Next is SHLD. देखिए जैसी जैसी लोड की इंस्ट्रक्शन थी बिल्कुल वैसी ही स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टोर HL pair directly. Now again it is having a 16-bit address. In this store HL register direct. What is the meaning of this instruction? The meaning is content of register L are stored into memory location specified by 16-bit address. Content of L and content of register H will be stored onto the next memory location. Like if you are executing this instruction, what will happen? There is a memory location 2550. Another next memory location will be 2551. This is a HL register pair like 3032. Like these are the data in the H or L. What will happen after executing this instruction? The memory location specified, that is 2550, it will have the content of L and the next will take content of H. Difference between previous and this one, previous केस में आपने क्या किया था? देखिए
स्टैक्स के केस में रजिस्टर पेयर ने आपको एड्रेस दिया था, यहां पर रजिस्टर पेयर ने एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पर जाकर आपने एक्यूमुलेटर से वैल्यू रखी थी। बट नाउ अब रजिस्टर पेयर आपको डायरेक्टली डेटा दे रहा है, ओके, और वही डेटा आप मेंशन कर रहे हो। एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मिलेगा और डेटा रजिस्टर पेयर में मिलेगा। प्रीवियस केस में इंस्ट्रक्शन में कोई एड्रेस नहीं मिल रहा था, इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर पेयर मिल रहा था और रजिस्टर पेयर से एड्रेस मिल रहा था। You have to learn all these things, okay? Once you will read this 2-3 times, it will automatically learn by you. Next is exchange, XCHG. This is a opcode for exchange. 1 byte instruction. This is a 1 byte instruction, means no operand is there, only XCHG. Whenever you are writing XCHG, it will automatically exchange. It will automatically exchange the content of register pair. Register pair means HL with DE. HL with DE. Content of H will be in the content of D. Like देखिए HL DE. L is the lower, E is the lower, so lower to lower and upper to upper. Okay? जो हायर ऑर्डर एड्रेस H में आता है अब वो H से D में आ जाएगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस L में था वो L से E में आ जाएगा। ओके, कंटेंट ऑफ रजिस्टर H विद रजिस्टर D, कंटेंट ऑफ रजिस्टर L विद रजिस्टर E, एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज और कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मींस देखिए यहाँ पे दोनों साइड एरो लगाए गए हैं, इसका मतलब D की वैल्यू H में और H की वैल्यू D में, L की वैल्यू E में और E की वैल्यू L में। कॉपी का मतलब क्या होता है, एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में जा रही है। ओके, अब D की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी, बट इन दिस केस D की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो H में आएगी और H की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो D में आएगी। प्रीवियस मींस जस्ट बिफोर एक्सचेंज। ओके, लाइक इधर आपके पास मान लीजिए X है और इधर आपके पास Y है, तो आफ्टर एक्सचेंज व्हाट विल हैपन, इधर आपके पास Y आ जाएगा और इधर आपके पास X आ जाएगा। नेक्स्ट इज SPHL। SPHL इंस्ट्रक्शन इज कॉपी HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर। अभी तक हमने जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़े थे B C D E H L, इनके अलावा अगर आप देखेंगे आर्किटेक्चर 8085 में तो यहां पर कुछ 16 बिट रजिस्टर्स भी थे। कौन कौन से रजिस्टर्स थे, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो अभी हमने सिर्फ ये रजिस्टर्स पढ़े हैं, अब आप स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। SPHL क्या कर रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू द स्टैक पॉइंटर। मींस HL के अंदर जो कंटेंट है उसको स्टैक पॉइंटर में डाल देगा। HL के अंदर जो कंटेंट है मींस जो भी HL के अंदर स्टोर्ड है उसको स्टैक पॉइंटर में डाल देंगे। एंड ऐसा हम SPHL इस तरह की इंस्ट्रक्शन कब यूज करेंगे या ये स्टैक पॉइंटर कब यूज करेंगे, जब आप मेमोरी स्टैक को डील करोगे, जब आप जो मेमोरी है वो स्टैक की फॉर्म में या प्रोसेसर जो है वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम स्टैक इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे। Now as we are discussing about stack instructions, so to insert there is a push instruction. Okay, push will do what, as the stack pointer is of 16 bit, see stack pointer is of 16 bit, so it will take 16 bit data। 16 bit के लिए इसको पूरा रजिस्टर पेयर लेना होगा, either B C D E H L। okay, so see push is an instruction that is for insertion। Insertion means to add or to append something onto the stack। means stack में आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, append कर रहे हो, means you are increasing the number of content। it will take a register pair, the content of register pair are copied onto the stack। जो रजिस्टर पेयर के अंदर वैल्यू होगी वो exactly as it is स्टैक में चली जाएगी। then stack pointer is decremented and contents of higher order register, that is B, D, H or A is accumulator। okay,
जो भी हायर ऑर्डर एड्रेस होगा वो स्टैक पर कॉपी हो जाएगा। बी के साथ सी, डी के साथ ई, एच के साथ एल। ओके, ये तीन तो रजिस्टर पेयर हमारे पास हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ए इज एक्यूमुलेटर दैट इज ऑफ 8 बिट। अगर आप एक्यूमुलेटर को एज अ हायर ऑर्डर एड्रेस रीड कर रहे हो, मींस आपके पास एड्रेसेस कम हैं, देन द फ्लैग्स विल बी, फ्लैग रजिस्टर विल बी टेकन एज लोअर ऑर्डर एड्रेस। नाउ फ्लैग आर व्हाट? फ्लैग आर द some 1 bit, flags are 1 bit pointer। पॉइंटर का मतलब यहां क्या होगा? जो सिर्फ एक कंडीशन वेरीफाई करने के लिए आपको स्टेटमेंट शो करेगा, लाइक कैरी फ्लैग। अगर कैरी जनरेट होगी तो ये फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ओके, साइन फ्लैग, अगर कोई रिजल्ट आपका जो कैलकुलेशन के बाद साइन रिजल्ट आ रहा है, मींस नेगेटिव आ रहा है, तो ये सेट होगा, अदरवाइज ये रीसेट होगा। सो दीज आर द 1 बिट पॉइंटर जो आपके पास किसी पर्टिकुलर कंडीशन की सेटिस्फैक्शन में यूज होते हैं। ओके, कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर विल बी कॉपीड इनटू द स्टैक, स्टैक में चला जाएगा। हायर ऑर्डर जो है वो पहले स्टैक में आएगा एंड देन फिर लोअर ऑर्डर आएगा। ओके, कंप्लीट एड्रेस जो है वो 16 बिट का है, बट 16 बिट का पूरा एड्रेस किसी एक रजिस्टर में नहीं आएगा, तो वो आधा रजिस्टर हायर ऑर्डर में और आधा रजिस्टर लोअर ऑर्डर में डिवाइड होगा। तो पहले हायर ऑर्डर पुट करेंगे एंड देन लोअर ऑर्डर पुट करेंगे। सो पुश बी अगर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो पुश बी का मतलब क्या होगा? बी और सी इस रजिस्टर पेयर से पहले हायर ऑर्डर उठाएंगे और फिर लोअर ऑर्डर उठाएंगे। कहां डालेंगे इसको? मेमोरी स्टैक में। नेक्स्ट इज पॉप। पॉप मींस डिलीशन, रिमूवल फ्रॉम स्टैक। अब क्या होगा? अब आप स्टैक से वैल्यू उठाकर रजिस्टर पेयर में डालोगे। ओके, कंटेंट ऑफ टॉप ऑफ स्टैक आर कॉपीड इनटू द रजिस्टर पेयर। अब टॉप ऑफ स्टैक से वैल्यू उठाएंगे और कहां डालेंगे? रजिस्टर पेयर के अंदर। सो द कंटेंट ऑफ लोकेशन, कौन सी लोकेशन? जो भी स्टैक पॉइंटर से लोकेट हो रही है, दैट इज कॉपीड टू लोअर ऑर्डर एड्रेस, CEL। जो लोअर ऑर्डर थे उनमें लोअर ऑर्डर एड्रेस जाएगा and then stack pointer is incremented and the content of location are copied into higher order। again वही B, D, H जो हायर ऑर्डर एड्रेसेस कंटेन कर रहे थे रजिस्टर पेयर, उनमें हायर ऑर्डर एड्रेस ही रहेगा। जो लोअर ऑर्डर वाले थे उनमें लोअर ऑर्डर रहेगा। पुश में क्या होगा? पहले हायर ऑर्डर देन लोअर ऑर्डर। पॉप में पहले लोअर ऑर्डर देन हायर ऑर्डर। ओके, next is out। now we'll discuss two different instructions, out and in। these instructions are used to take and give data to and from ports। out is for output, means when you are giving something। so content of accumulator are copied into the IO port। अब accumulator से पोर्ट पर जा रहा है आउटपुट, ठीक है। it will contain an address, 8-bit address of a port on which the external device is connected। it copies data from accumulator to the port। accumulator से पोर्ट की तरफ जा रहा है, means you are taking output। out instruction is for output। similarly in instruction is for input, means now copy data to accumulator। अब क्या होगा? कोई भी पोर्ट है, वो पोर्ट क्या कर रही है? डेटा दे रही है। किसको दे रही है? accumulator को। means if you want to read some data from keyboard, like अगर आप कीबोर्ड से कोई डेटा रीड करना चाहते हो तो कीबोर्ड किस पोर्ट पर कनेक्ट है उस पोर्ट का एड्रेस देंगे एंड इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम। लाइक जैसे आप सी में स्कैनएफ लिखते थे, स्कैनएफ क्या करता है? रीड करता है, कीबोर्ड से रीड करता है। सो दिस इज अ हाई लेवल इंस्ट्रक्शन विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 8C। तो 8C क्या है आपका? वो कीबोर्ड का एड्रेस है। तो कीबोर्ड का एड्रेस वो यहां मेंशन करेगा। इन मींस इनपुट, तो वो इनपुट लेगा। ओके, इन एंड आउट these two instructions are used with the port address, 8-bit port address। and port means where the external device is connected, whether input or output।
If you are taking input, then you will use in instruction. If you are taking output, then you have to use out instruction. So this was all about data transfer instructions. Next is arithmetic instructions. In arithmetic instructions, first we'll discuss about addition. Addition is any 8-bit number, as in 8085 the data is of 8-bit. So any 8-bit number, whether it is a content of register or a content of memory or content of accumulator, okay, any 8-bit number, either immediate data or register or a memory or accumulator, anything, it can be added and the result or the sum is stored directly into the accumulator. By default, it is stored in the accumulator. Later on, you can take the data from accumulator to any other location or any other register. No two other 8-bit registers can be added directly. Means one accumulator is compulsory. Means add B, add C, add H. All these instructions are applicable, but if you want to add B, C, this is not possible, because in 8085 the instruction set and the processor is designed in a manner like in every instruction one ऑपरेंड इज बाय डिफॉल्ट द एक्यूमुलेटर. मींस एक एक्यूमुलेटर तो हर इंस्ट्रक्शन में यूज होगा ही होगा. इफ यू वांट टू ऐड बी एंड सी सच ऑपरेशन, इफ यू वांट टू डू, तो आपको पहले करना क्या पड़ेगा, ए में 0 डालना पड़ेगा, देन ए और बी को ऐड करो, देन जो रिजल्ट होगा वो ए में आ जाएगा, उसके बाद ए और सी को ऐड करो, अगेन रिजल्ट फिर से ए में आ जाएगा. ओके, ए विल बी 0, A will be A plus B, then A will be A plus C. इस तरीके से आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ओके, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B cannot be added directly to the content of रजिस्टर C. आप B और C का डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते. सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस A minus B, B minus C, A minus C, C minus A. Okay, so any 8-bit number, content of register or memory location can be subtracted from accumulator. Subtracted from accumulator. Now this is the most important thing. Subtracted from means अगर हमने लिखा SUB sub C, इसका मतलब क्या है, A minus C. Subtracted from, okay, always accumulator में से ही subtraction होगा. ओके, इफ यू वांट टू डू C minus A, देन आपको इंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ेगी. सब्ट्रैक्शन तो होगा बट आपको कंटेंट चेंज कराने पड़ेंगे. ओके, सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, इट इज स्टोर्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बाय डिफॉल्ट. अगर रिजल्ट नेगेटिव होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही सेव होगा. कहां सेव होगा, एक्यूमुलेटर में सेव होगा. कोई भी दो रजिस्टर्स सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते. मीन सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में एक्यूमुलेटर का होना जरूरी है. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. 8-bit कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1. नाउ 8-bit कंटेंट either register or memory means R or M. Okay, it can be incremented as well as decremented by 1 only. Now in this case, if you want to use immediate data, then it cannot be implemented in increment or decrement option. What is the meaning of that? जो भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो वो या तो किसी रजिस्टर में या मेमोरी में होना चाहिए. आप डायरेक्टली डेटा दो 32 कि इसको इंक्रीमेंट कर दो, नो, वो नहीं होगा. ओके, तो पहले आपको 32 किसी रजिस्टर में या मेमोरी में डालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को आपको इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा तो हो जाएगा. नाउ
If we are talking about single register or single memory, it is possible. Now if you are taking 16 bit as a register pair or a memory, then 16 bit content of register pair can be incremented or decremented by 1. It is also possible that if you are taking HL, BC, DE, okay, as a register pair and you are incrementing this, then it is possible that it can be incremented. If let this is the content of HL. If you are taking only the H register and incrementing it, so its content will be 31. If you are taking complete register pair together and incrementing, so now the content will be 3031. अगर आप सिंगल रजिस्टर की बात करें तो सिंगल रजिस्टर की वैल्यू बढ़ सकती है. अगर कंप्लीट रजिस्टर पेयर 16 बिट की बात कर रहे हो तो कंप्लीट 16 बिट के ऊपर भी जो ऑपरेशन होगा वो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर ही होगा. लाइक अगर H में 30 है और आप H के ऊपर इंक्रीमेंट लगा रहे हो तो वो 30 से 31 बन जाएगा. बट अगर आप HL पेयर के ऊपर लगा रहे हो तो वो सिर्फ L का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा. नाउ द कंटेंट विल बी 3031 if it is a register pair, and if it is only a register then it will be 31. Next is increment or decrement can be performed on any register or memory location. किसी भी रजिस्टर किसी भी मेमोरी के ऊपर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. Now the instruction add. You can use any register or memory with this. M will be represented using HL register pair. वो हम जो है पहले से लोड इंस्ट्रक्शंस में और स्टोर इंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़ ही लिया है. ओके. R means register. Okay. Content of register or memory are added to the content of accumulator. एक ऑपरेंड जो है वो accumulator ही रहेगा, दूसरा आप मेंशन कर सकते हो. रिजल्ट बाय डिफॉल्ट accumulator में सेव होगा. ऑपरेंड अगर मेमोरी लोकेशन में है तो HL पेयर से मिलेगी. All flags are modified to reflect the result of addition. जो फ्लैग्स होते हैं 8085 रजिस्टर में वो सब के सब फ्लैग्स यहाँ पर मॉडिफाई हो सकते हैं एज अ रिजल्ट. मींस अगर रिजल्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैरी जनरेट हो रही है, पैरिटी जनरेट हो रही है, जो भी फ्लैग रजिस्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फ्लैग मॉडिफाई होगा. एग्जाम्पल इज add B, add M. If this is add B, it means A plus B, accumulator plus B. And if it is add M, means accumulator plus content of memory. Accumulator plus content of memory. Then ADC. ADC stands for add with carry. Add with carry. In the previous one, carry is not taking care of. कैरी का अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाया गया है एड इंस्ट्रक्शन में. एंड इफ यू आर टेकिंग एडीसी एज एन इंस्ट्रक्शन, इट मींस नाउ कैरी फ्लैग इज एडेड विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर. लाइक एक्यूमुलेटर में आपके पास 1010 डेटा है, कैरी फ्लैग अलग है. ये 4 बिट है तो ये 4 बिट 4 के साथ ऐड हो रही है प्लस कैरी बिट भी इसमें आएगी, तो ये टोटल 5 बिट बन जाएंगी. नाउ द डेटा इज ऑफ 5 बिट. अब आप एक कैरी को लेकर चल रहे हो. प्रीवियस केस में आपने कैरी नहीं लेके गए थे. ओके. कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी एंड कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. अब कैरी फ्लैग की जो वैल्यू है वो साथ में ऐड हो रही है. प्रीवियस केस में आपने 1 और 1 2 ये 2 वैल्यूज ऐड करी थी. अब क्या होगा, इसमें कैरी भी ऐड हो रही है. इट इज अ लाइक 3 बिट. ओके. प्रीवियस के आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा ना 2 बिट ए और बी, वो तो हम किससे कर सकते हैं, हाफ एडर. अगर ए बी और सी मतलब प्रीवियस कैरी फुल एडर, दैट इज एडीसी. हाफ एडर क्या था, दिस इंस्ट्रक्शन इज हाफ एडर एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज फुल एडर. ओके. नेक्स्ट इज एडीआई. इफ यू वांट टू ऐड एनी इमीडिएट डेटा, अगर आप डेटा दे रहे हो, लाइक डेटा आपने मेंशन कर दिया दिस 45, this 45 is to be added with the accumulator. एक तो accumulator है by default, दूसरा आप accumulator में अगर 45 ऐड करना चाहते हो then you can use ADI, that is add immediate. Add immediate.
here you will mention 8-bit data that will be added with the content of accumulator. Flags will be modified as the result of addition and result will be stored in the accumulator itself. ACI, add immediate with carry. Now 8-bit data, accumulator and carry flag, all three things are added together. So difference between ADI and ACI, ADI और ACI में क्या डिफरेंस रहेगा? Here carry flag नहीं है, ओके यहाँ carry flag है, मीन्स यहाँ पर आप सिर्फ accumulator और डेटा को ऐड कर रहे हो. यहाँ पर accumulator, डेटा और कैरी तीन चीजें ऐड हो रही हैं. Then subtraction, sub RM, subtraction A माइनस जो रजिस्टर होगा A माइनस B, A माइनस C, A माइनस R जो भी है. SBB, दिस इज फॉर बोरो. लाइक एडिशन में कैरी हमने मेंशन किया था, SBB मीन्स सब्ट्रैक्शन विद बोरो. अब बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन हो रही है, A माइनस B माइनस बोरो. ओके, यहां 3 बिट हो गया, वो 2, यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर. सब्ट्रैक्ट इमीडिएट, जो भी डेटा आप दे रहे हो वही डेटा सब्ट्रैक्ट होगा. सब्ट्रैक्ट इमीडिएट विद बोरो, जो डेटा आप दे रहे हो वही सब्ट्रैक्ट होगा और उसके साथ बोरो भी सब्ट्रैक्ट होगी. INR, INR मींस इंक्रीमेंट. INR मींस इंक्रीमेंट. सिंगल रजिस्टर की बात हो रही है, रजिस्टर पेयर की बात नहीं हो रही है. ओके, INR 1 बिट से 1 से जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा. INR B, INR C, INR D. देखिए INR B तो क्या होगा, कंटेंट ऑफ B 1 से ऐड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. सिमिलरली M मींस HL पेयर का कंटेंट होगा. मेमोरी लोकेशन अगर 2050 है और आपने इंक्रीमेंट कर दिया तो इट विल बी 2051, इंक्रीमेंटेड बाय 1. INR. नेक्स्ट इज INX. INX मींस रजिस्टर पेयर, X है तो रजिस्टर पेयर हो गया. INX H लिखते हैं, मतलब रजिस्टर पेयर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. इफ वी सी INR एंड INX, INRH और INXH, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पर सिर्फ रजिस्टर H का जो कंटेंट होगा वो मॉडिफाई होगा. L का कंटेंट कुछ भी हो उसकी कोई मतलब नहीं है. यहां पर H का और L का जो कंटेंट है लाइक 3021, ठीक है. INX H करते ही रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 3022. यहां पर आ जाएगा 31. L की कोई मतलब नहीं है, L में जो भी डेटा हो पढ़ा रहने दो. ओके, इंस्ट्रक्शन है INR और INX. R मतलब सिंगल रजिस्टर, X मतलब रजिस्टर पेयर. आप ये सिंगल रजिस्टर और रजिस्टर पेयर दोनों पे लगा सकते हो. अगर आप INX C लिखोगे तो वो गलत है, INX E गलत है, INX L गलत है. ये इंस्ट्रक्शंस गलत है. व्हाई? बिकॉज X मतलब रजिस्टर पेयर, और रजिस्टर पेयर लेते हैं तो उसका सिर्फ स्टार्टिंग रजिस्टर देते हैं, दैट इज आइदर B, D और H. रजिस्टर B, रजिस्टर D और रजिस्टर H, यही देंगे तो ही वो रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट नहीं करेगा. DCR, डिक्रीमेंट रजिस्टर बाय 1. DCR and DCX, similarly INR, INX. X मतलब रजिस्टर पेयर और R मतलब सिंगल रजिस्टर. So this was all about arithmetic instructions. Next will be logical, उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.